The COVID-19 pandemic has shown us what the virus can do, how it can wreak havoc on lives and livelihoods, and bring the entire world to a standstill. Across the globe, scientists, health workers, governments, pharmaceutical companies, and industries have worked hand in hand to tackle this problem. In India, the apex biomedical research body, the Indian Council of Medical Research, or ICMR, has been at the helm of COVID-19 response. At the outset of the pandemic, ICMR facilitated testing in laboratories with a mission to ensure that tests are available and accessible to every person in the country. Today, testing has increased exponentially, with 3,000 labs providing COVID-19 diagnosis in even the remotest parts of the country. The Council has also provided evidence-based prevention, management, and diagnosis guidelines and advisories to tackle the COVID-19 pandemic. Our scientists are researching to ensure that data is available to help tackle every problem that comes with the disease. We have built a system to ascertain what factors could be responsible for the third surge of SARS-CoV-2 infections at the district and state levels in the country, and how vaccination rates will affect this surge. But the most incredible achievement in this pandemic is the development of a safe and effective vaccine in 10 months. ICMR, in partnership with an Indian manufacturer, Bharat Biotech, took on the strenuous task of developing an indigenous solution. In this partnership, both of us are working in public health tools. Whether industry or ICMR or NIV, all of us are working only to help the community at large, our country at large, our society at large. Has also worked with multiple partners to deliver these vaccines through innovative mechanisms, such as drones, increasing accessibility of the vaccine in the remotest corners of the country. Today, more than 110 million Covaxin doses have been administered to Indian people, which has helped the country cross over the milestone of providing 1 billion vaccination doses. We at ICMR are future ready, committed to drawing upon the country's brightest minds to provide cutting-edge solutions to health challenges, so that we can move forward for a safer and healthier world. Thank you so much, sir. So, अब हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की डायरेक्टर डॉक्टर प्रिया अब्राहम से अनुरोध करते हैं कि वो कोवैक्सीन की जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं. So over to Dr. Priya. Mananiya Dr. Mansukh Mandavia, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizer, Mananiya Dr. Bharti Praveen Pawar, Honorable Union Minister for State for Health and Family Welfare, Mananiya Dr. Desing Chauhan, Honorable Union Minister for State for Communication, respected Professor Dr. Balram Bhargav, Secretary DHR and Director General ICMR, Dr. Krishna Ella, Chairman and Managing Director of BBIL, Dr. Samiran Panda, Additional Director General and Head ECD ICMR, other esteemed colleagues, ladies and gentlemen. When BBIL approached ICMR in April 2020 to come for a partnership to make a whole virion inactivated vaccine, ICMR and NIV was well positioned to be part of that collaboration. This institute of ICMR had already detected the first cases in the country. They had distributed several RT-PCR reagents to different parts of the nation and had succeeded in isolating and characterizing the virus. India was the 5th among all nations to have achieved this high goal in 2020.
ICMR NIV then handed over the virus in end of April 2020. BBIL took the virus and made the inactivated formulation, giving it back to us for further checks and characterization, and then began the safety and immunogenicity studies in ICMR NIV. We started with small animals in mice, rats, and rabbits, and then went on to golden hamsters and rhesus macaques. To get these hamsters from one of our sister institutions, ICMR NIN in Hyderabad, was challenging because of restrictions in travel and crossing interstate borders. But by far, what was most challenging was the procurement of the rhesus macaques or monkeys. These had receded during the lockdown deep into the depths of the forest. And ICMR NIV went on to expeditiously get their approvals of the Institutional Animal Ethics Committee, the CPCSEA, and permissions from the Forest Department. Our scientists, along with forest officials, had to go really kilometers into the forest to capture these macaques. These were difficult, trying, and uncertain times, and the unstinting support of our Director General, Professor Dr. Balram Bhargav, can never be forgotten. We now have continued to help them with their... We continue to help them with clinical trials, providing them with reagents for RT-PCR and ELISA. And it is no wonder that within 10 months, this vaccine got emergency use approval for the nation. We continue to help them looking at the immune response among Covaxin recipients against virus variants, and also handing over live virus of these virus variants to Bharat Biotech. This is possible because of the support and the encouragement from DG ICMR and senior scientists at ICMR, and the fantastic teamwork at ICMR NIV, Dr. Pragya Yadav, Dr. Gajanan Sapkal, Dr. Varsha Pudhar, and their respective teams, Dr. Mangesh Gokhale, Dr. Dilip Patil, and many other senior colleagues, technologists, and administrative colleagues. We also want to thank Bharat Biotech for this spectacular journey that we embarked on and which we actually continue. This fruitful public-private partnership was possible only because of the support of the Government of India. Dhanyavad. Jai Hind. Sir, can't hear, sir. Can't hear, sir. Okay, please go ahead, sir. We can hear you. Okay, sir. I want to thank you, sir. Today is a very important day because 365 days. Exactly. Today is the one we got the permit from the European, EUL license for our vaccine. And I want to thank our Union Minister for Mansukh Bhai Saab, and our Minister of State, Powers Ji. And I want to thank for the Chauhan Saab, our Union Minister Chauhan Saab, for for gracious occasion of this matter. Today is a great day, sir, for Indian science and Indian innovation, entrepreneurship, and life science industry of this country. To receive the honor of commemorating vaccine development to a stamp is one we have not even dreamt about it as a scientist. There are many parallels between stamp and vaccines. Both are pointing to the impact of the lives of the Indians. And both have wide impact across the length and breadth of our vast country of 1.35 billion population. Along with the kindergarten to 12 education, vaccine provides the best return of investment for the government of India. Similar to Indian Postal Service,
vaccine developers and manufacturers have no time to rest. We're all working together on 24 hours and 365 days. In vaccine development, we have to predict future requirement, develop a hypothesis, and test them before the problem arises. This is exactly what we did for boosters and children vaccines. And we designed many various protocols for testing Covaxin for booster and children vaccines way back in the late 2020 itself, even before EUA approval. And I think we have achieved the goals that we set for ourselves with the Covaxin becomes a universal vaccine from adults to children as the primary or the booster dose. We thank the Government of India and particularly Honorable Prime Minister for his encouragement and for his visit to our plant. Really encouraged us and made us to work hard to achieve the dream of our Honorable Prime Minister. And I think I want to thank our Union Minister and Union Minister of State and Union Minister of State Communication and CDSO and ICMR under Dr. Balram Bhargav Saab leadership. It was a phenomenal journey for us. He worked like a CEO of a company and we worked as academic institutes. And I think, making a truly public-private partnership as a success. We thank the Indian Postal Service for the rare honor, and future generation will remember that in the time of pandemic, our country was able to respond in a decisive manner. The stamp will serve as an inspiration for young scientists, innovators, and entrepreneurs that if you have the skills and are willing to work hard, you can make it to happen in India. This is a true story of Atmanirbhar and can do for India. And I want to thank Priya Abraham, NIV Director, Pragya, and Gajanan, and Nived Gupta in the ICMR headquarters, Panda, everyone. Honestly, we built amazing relationship with the journey. And again, once again, I want to thank our Ministry of Health. I was so proactive, inspiration for us. The ministry was not working like a minister. They all worked as a partner to help us to succeed in our life. And I want to thank again in the last Honorable Prime Minister for his visit to our plant. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। अब हम अपने माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से अनुरोध करेंगे कि वो पोस्टल स्टैम्प का अनावरण करें। वहां से खरीदेगा। Hello. Open it. Yeah. Yes. Here, Sanjay and about the forest. Yeah, what was the content of the talk? तो माननीय मंत्री जी के साथ राजकोट के पोस्ट मास्टर जनरल मिस्टर राकेश कुमार भी मौजूद हैं, तो वो एक एल्बम मंत्री जी को प्रदान करेंगे और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो
बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी से मैडम से अनुरोध करेंगे कि वो अपने आशीर्वचन से हम सबको अनुग्रहित करें। सो ओवर टू डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओवर टू यू मैडम। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देव सिंह चौहान जी, माननीय डॉक्टर कृष्णा हेगला जी, भारत बायोटेक सीएमडी, डॉक्टर बलराव भार्गव जी, सेक्रेटरी आईसीएमआर, डॉक्टर प्रिया अब्राहम, सभी मान्यवर, देवी और सज्जनों, सभी उपस्थित सभी मान्यवर, आज के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन पर इस कोविड-19 वैक्सीन के प्रत्यर्थ ये डाक टिकट के विमोचन के शुभ अवसर पर आज आप सभी के उपस्थित पीसी द्वारा मुझे आपने मौका दिया। मैं बहुत गर्व और बहुत ही सम्मानित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जैसे देखा कि भारत ने कोरोना के खिलाफ, इस वायरस के खिलाफ एक तरह का युद्ध घोषित किए हुए एक साल से भी अधिक समय हो गया है और आज ही के दिन ये 16 जनवरी 2021 को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये वैक्सीनेशन का ये देशव्यापी अभियान शुरू किया था, और जिसके तहत इस शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मी हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, जो कोरोना के खिलाफ इस वैक्सीन लगाने की शुरुआत की थी और इसके बाद एक चरणबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाते गए और देखते ही देखते आज हमने 156 करोड़ से भी ज्यादा डोज लगे हैं, आज लग रहे हैं आगे। ये बहुत ही गर्व की बात है। आज देश की 92% आबादी को पहली डोज लगाई जा चुकी है और लगभग 70% की जनसंख्या को दूसरी भी डोज लगी है। इसके साथ आज देश में 15 से 18 के उम्र के लोगों को, बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है, और इसके अलावा बुजुर्ग हो, फ्रंटलाइन हेल्थ लाइन वर्कर्स हो, उन्हें भी प्रिकॉशनरी डोज लगाने का काम जारी है। और ये बहुत गर्व की बात है कि भारत का टीकाकरण अभियान ये विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान माना जा रहा है। आज हम सब जानते हैं कि एक साल पहले हमारे 130 करोड़ जनता की आबादी को वैक्सीन दिया जाना एक असाधारण लक्ष्य था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गतिशील और सभी के प्रयासों को एक साथ रखकर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समर्थित शिक्षाविदों, उद्योगों और विज्ञान संस्थानों के साथ साझेदारी से आज हमारे देश में वैक्सीन निर्मित और टीकाकरण अभियान एक नई ऊंचाई स्थापित कर रहा है। आज जब कोरोना की तीसरी लहर फैली हुई है, जो हम फेस कर रहे हैं, ओमिक्रॉन जैसा नया वेरिएंट, तो उसमें भी यह टीकाकरण गंभीर बीमारी को रोकने में बड़ी ही अहम भूमिका निभा रहा है। आज इस कोविड-19 महामारी को मद्देनजर देखते हुए आईसीएमआर ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में परीक्षण के लिए समावेशी और न्यायसंगत पहुंच के लिए संसाधन का अनुकूल और स्थायी स्केलिंग का एक अनिवार्य हिस्सा था। प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से युक्त राष्ट्रीय टास्क फोर्स द्वारा समर्थित आईसीएमआर ने परीक्षण के लिए एक कैलिब्रेटेड रणनीति तैयार की थी। राष्ट्र की कोविड-19 परीक्षण क्षमता को कम से कम समय में बढ़ाया गया था। आज पूरे देश में 3000 से अधिक प्रयोगशालाएं, वो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह से लेकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के दुर्गम इलाकों को तथा लद्दाख जैसे 18,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक फैली हुई है। परीक्षण के अलावा आईसीएमआर ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डायग्नोस्टिक, वैक्सीन और उपचार विकल्पों की खोज, डायग्नोस्टिक किट
और आपूर्ति के सत्यापन और स्वदेशी निर्माताओं को आत्मविश्वास पूर्वक आगे बढ़ाने में बड़ा ही योगदान दिया है। आज कोविड-19 की महामारी के सभी राष्ट्रों के लिए एक असामान्य मानवीय और आर्थिक मुद्दा बन गया है। इस विविध उभरते नए रूपों की रिपोर्टिंग के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यह जल्द दूर नहीं होगा, हालांकि समाज और अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावित करेगा। अब कोविड संक्रमण को रोकने के साथ हमारा ध्यान इस अर्थव्यवस्था को गति देना और आगे बढ़ाना भी है, और इसमें इस आबादी का टीकाकरण इस दिशा में आगे बढ़ने में जरूर मदद कर रहा है। इसके साथ ही आईसीएमआर की जानकारी इकट्ठा करने और नियमित रूप से कोविड-19 स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अपने शोध और अध्ययन जारी रखे हुए हैं। उत्परित वायरस के अन्य पहलुओं के अध्ययन के साथ साथ वैक्सीन अनुसंधान को तीव्र गति से आगे बढ़ाया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवन जैसा कि हम एक बार जानते थे ये बदल गया है। इस नए सामान्य के साथ तालमेल बिठाना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि चिकित्सा अनुसंधान की दिशा हमारा प्रयत्न हमें जारी रखना होगा। साथियों, पिछले 1 साल में भारत ने आपातकालीन उपयोग के लिए 8 कोविड-19 टीकों को मंजूरी दी गई थी। हालांकि कोविशील्ड और स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन भारत के टीकाकरण अभियान की रीढ़ रही है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन ने विश्व स्तर पर विविध चुनौतियों का सामना किया और मान्यता हासिल की। आज कोवैक्सीन बच्चों को दिया जाने वाला एकमात्र टीका है। हमारे अपने स्वदेशी पद्धति से विकसित टीके का निर्माण हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक रहा है, जिससे हमें कोविड-19 के खिलाफ की लड़ाई में मदद की है। मैं इस स्तुत्य और साझेदारी में काम करने के लिए आईसीएमआर और भारत बायोटेक की सभी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। इस अवसर पर मैं अपने सभी स्वास्थ्य प्रणालियों, सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और उन सभी लोगों को, सभी टीम को बधाई देना चाहती हूँ जो कम से कम समय में 156 करोड़ से अधिक आबादी का टीकाकरण करने के लिए ये टीका कार्यक्रम में लगे हुए हैं। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है, और यही हमने इस संकट के समय में सीखा है और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। आज हम सभी के लिए यह गर्व का क्षण है कि हम कोविड वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट जारी कर रहे हैं और इस घातक वायरस के खिलाफ की लड़ाई में मानव कल्याण के लिए किए गए हमारे प्रयासों को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण गवाही है। मैं इस अभूतपूर्व पहल के लिए संचार मंत्रालय तथा डाक विभाग का बहुत आभार प्रकट करती हूँ तथा सभी संबंधितों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये हमारा एक ऐतिहासिक दिन है, गौरवशाली दिन है, और जिसपे हम विजय पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहल का ये नया दिन है। सभी को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम फॉर योर इंस्पिरेशनल टॉक, और ये बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहेगा हम सभी के लिए आगे बढ़ने के लिए। और डाक टिकट के बनाने में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और संचार विभाग की बहुत अहम भूमिका रही है, और आज हम लोग बहुत ही खुश हैं और हर्ष का विषय है कि हमारे बीच संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान मौजूद हैं यहाँ पर। तो हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो यहाँ आए और हमें अपने शब्दों से संग्रहित करें। Honorable Dr. Mansukh Mandaviya ji, Union Minister for Health and Family Welfare. Honorable Dr. Bharti Pawar ji, Minister of State for Health and Family Welfare. Dr. Balaram Bhargav ji, Secretary and
डीजी ICMR, डॉक्टर प्रिया जी, डॉक्टर कृष्णा जी, डॉक्टर पांडे जी, पोस्टल विभाग के ADG डॉक्टर अशोक पोद्दार जी, उपस्थित आप सब, आज पूरे भारत इस पल का गौरव मना रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में आत्मनिर्भर भारत का, नए भारत का ये गौरवशाली पल का उत्सव मनाने जा रहा है। आज हम जब आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब ये यही भारत है जहां आजादी के वक्त में इस देश की जनता को खाने के लिए गेहूं इंपोर्ट करना पड़ता था। ये देश है जब अपने देशवासियों का पेट भरने के लिए हमारे देश के प्रतिनिधियों ने विदेश के सामने कटोरा लेके घूमे थे। लेकिन आज वो दिन है जहां हमारा भारत के सम्मानीय डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के कारण आज वो गौरव का पल आया है, जहां हमने यूरोप समेत कई देशों में वैक्सीन का निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। तो ये बदलता हुआ भारत, ये नया भारत, श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब इस देश में नामुमकिन चीजें मुमकिन होने जा रही है, तब उनका मार्गदर्शन हमारे लिए इतना ही हमें आवश्यक भी है और मिलता भी रहा है। और मैंने ये जर्नी सुना कि किन परिस्थितियों में ये वैक्सीन बनाया गया है, कैसे रेट, रैबिट और मंकीज को लेने के लिए कितना किलोमीटर तक फॉरेस्ट में हमारे साथी गए हैं। तो ऐसा लगता है कि इस देश को बचाने के लिए इससे बड़ा जज्बा किसी और विभाग में नहीं है, जितना हमारे विभाग के उन डॉक्टरों और साइंटिस्टों ने काम किया है। ये सब किस लिए किया गया? ये सबसे बड़ी चुनौती थी। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या और सबसे बड़ा विस्तार वाला ये देश, और ये पेंडेमिक, ये महामारी, वैश्विक महामारी के सामने इतनी बड़ी जनसंख्या के लोगों को बचाना एक नामुमकिन काम था। लेकिन ये सब आपने करके दिखाया। आज हम देख रहे हैं कि आज कुछ स्वास्थ्यकर्मी का सम्मान हो रहा है, लेकिन वो कुछ स्वास्थ्यकर्मी नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के एक छोटे से छोटे कर्मचारी, जो चाहे वो ड्राइवर होगा, प्यून होगा, यहाँ से लेकर एक एक्सपर्ट डॉक्टर हो गए या साइंटिस्ट हो गए, उनका सम्मान आज हो रहा है। उनमें पूरे भारत के उन क्षेत्र का सम्मान हो रहा है जिन्होंने भारत को बचाने के लिए दिन रात एक किया है, अपनी जान जोखिम में डाले, और इनको आज हम नमन करने जा रहे हैं। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और मैं नमन भी करता हूँ ऐसे भारत के प्रति अपना सम्मान और भारत के प्रति अपना जो गौरव बचाने के लिए और भारत के प्रति अपना जीवन त्याग करने की जो सोच रखने वाले उन्हीं डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के कारण हुए हैं। और ये भारत के लिए नहीं हुआ है। जैसे ही हमारा फिलोसॉफी रहा है, सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कसित दुख भाग पड़े। हम सबकी सुख की कल्पना करते हैं, हम वसुधैव कुटुंब की कल्पना करके पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तब जाके हमारे ही डॉक्टर और साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन बनाई, आज 100 से अधिक देशों में हमने ये हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व निभाया है। वो केवल आपका जज्बा के कारण हुआ है, आपकी संस्कृति, हम सबकी परंपरा के कारण हुआ है। ऐसे पल में जब पोस्टल विभाग के कम्युनिकेशन की मिनिस्टर की हैसियत में ऐसे पल में हाजिर रहना भी एक खुद गौरव है, और मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूं कि ऐसे पलों में मुझे ये पल में, और जब भले हम संख्या में कम हैं, लेकिन आज पूरे भारत के लिए यहां से एक संदेश देना चाहता हूं।
कि भारत के श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से, क्योंकि हमने सुना था, हम बार बार ये इंडस्ट्री वालों से भी सुना था, पत्रकार मीट में भी सुना था कि अगर हमें प्रधानमंत्री का सहकार नहीं मिलता, अगर हमें गवर्नमेंट का सहकार नहीं मिलता, अगर हमें श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो हम ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। आज हम 155 से करोड़ ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट हुआ है। 15 से 18 के बीच आज जो इतना वैक्सीन हो रहा है, सेकंड डोज हो रहा है, थर्ड डोज हो रहा है, केवल हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति के कारण हुआ है। आज हमें भी उनके प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ये जो संचार विभाग के साथ जो हमारी पार्टनरशिप थी, ये एक अंतर विभागीय सहयोग जो हम बात करते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, कि हम लोग सब विभिन्न विभाग मिलके कितने बढ़िया बढ़िया काम कर सकते हैं, उसका भी एक जीता जागता उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने आशीर्वाद वचनों से हम सबको अनुग्रहित किया। अब जो हमारे सामने ये जो समस्या कोविड जैसी महामारी आई, तो कोविड की महामारी की चुनौती का सामना करना भारत जैसे विशाल देश, जिसकी इतनी बड़ी संख्या की आबादी, जिसके इतने दुर्गम क्षेत्र, उन सब तक लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना, वैक्सीन को सुलभ कराना और वैक्सीन के प्रति जो हेजिटेंसी थी उसको दूर करना, तो उसमें हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उन्हीं की श्रेणी में जो सबसे आगे आए थे वो थे मेडिकल डॉक्टर्स। मेडिकल डॉक्टर्स जो थे, जिन्होंने कोविड के जो भी रोगी थे उनकी देखभाल की, खुद भी कई बार वो इन्फेक्टेड हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वैक्सीन की जब सेफ्टी की बात आई, वैक्सीन की इफिकेसी की बात आई, लोगों के अंदर ये भ्रम हुआ कि ये वैक्सीन इतनी जल्दी बन के आ गई है, क्या ये सेफ है, क्या ये सुरक्षित है, क्या ये प्रभावी है। तो सबसे पहले जब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ देश में, सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी आगे आए कि पहले हमको वैक्सीन लगाओ, ताकि ये लोग इंश्योर कर ले कि जब स्वास्थ्यकर्मी ने, डॉक्टरों ने वैक्सीन लगा ली तो जो है ये सेफ है। तो जितने भी डॉक्टर्स थे, मेडिकल डॉक्टर्स थे, उनको सबसे पहले जो है वैक्सीन लगी और उन्होंने ये जो है आम जनता के अंदर आश्वासन दिया कि ये वैक्सीन आप लगवा सकते हो। तो इस प्रकार जो भारत सरकार है वो सभी मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं पूरे भारतवर्ष में, उन सबका सम्मान करना चाहती है, लेकिन वो सारे डॉक्टर्स एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर शैलेश भूपत भाई टाडा, जो मेडिकल ऑफिसर हैं PSC सेंडारडा के, वो आज जो है माननीय मंत्री जी के पास उपस्थित हैं, वहां पर पालीताना भावनगर में। तो हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करेंगे कि वो सारे डॉक्टरों के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद डॉक्टर शैलेश भूपत भाई टाडा जी को सम्मानित करें। इसी क्रम में जब वैक्सीन का जो है, जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, तो जो आशा वर्कर थे, आशा वर्कर ने भारत जैसे विशाल देश में दूर से दूर क्षेत्रों में, लेह लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार तक, जो उन्होंने कार्य किया और इतनी कठिन परिस्थितियों में लोगों तक घर घर जाकर वैक्सीन पहुंचाई, तो उन आशा वर्कर का भी बहुत बड़ा योगदान है इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में। और इन सब आशा वर्कर के प्रतिनिधित्व के रूप में मिसेस हंसाबेन भंडेरी बहादुर PSC वालुकाड जो मौजूद हैं वहां पर भावनगर में, हम उनका सम्मान करेंगे। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो उनको सम्मानित करें। इस वैक्सीन को घर घर तक पहुंचाने, गांव-गांव तक पहुंचाने, दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने में जो ड्राइवर बंधु थे, उन लोगों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो अंडमान निकोबार में रहे हों, चाहे आसाम में रहे हों, चाहे लेह लद्दाख में रहे हों, सारे ड्राइवर बंधु ने बहुत मेहनत से काम किया है और भारत सरकार इन सबका सम्मान करती है। और उन सबका प्रतिनिधित्व करते हुए श्री उपेंद्र सिंह रंजीत सिंह गोहिल, ड्राइवर जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत भावनगर के हैं, वो आज मौजूद हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उनका सम्मान करें। बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने हर घर दस्तक जैसे प्रोग्राम को लाभान्वित करके घर घर तक पहुंचाया, ताकि लोगों को कैसे कैसे अधिक संख्या में वैक्सीनेट किया जाए, उन सारे स्वास्थ्य कर्मियों के प्रतिनिधित्व के रूप में मिसेस मीताबेन राठौड़, जो फीमेल हेल्थ वर्कर हैं अर्बन हेल्थ सेंटर सीहोर की, वो आज मौजूद हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वो सारे हेल्थ वर्कर की तरफ से मिसेस मीताबेन राठौड़ का स्वागत करें।
इस टीकाकरण के कार्यक्रम में बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ थे जिन्होंने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफल बनाया, और भारत सरकार ये चाहती है जितने भी जो कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया उन सबका सम्मान किया जाए। और उन सबके प्रतिनिधित्व के रूप में श्री सजन भाई हेडगार्डा जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हैं अर्बन हेल्थ सेंटर सीहोर के, वो आज मौजूद हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उनका स्वागत करें। श्री सजन भाई हेडगार्डा, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर अर्बन हेल्थ सेंटर सीहोर। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन सम्मान। अब हम माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने आशीर्वचन से हमको अनुग्रहित करें। ओवर टू यू सर। नमस्कार। वैक्सीनेशन ड्राइव के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ICMR और कोवैक्सीन दोनों के संयुक्त पोस्टल स्टैंप जारी करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हेल्थ मिनिस्ट्री में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, हमारे कार्यक्रम में विशेष उपस्थित कम्युनिकेशन के राज्य मंत्री और हमारे मित्र श्री देवसी जी, डॉक्टर बलराम भार्गव जी, डॉक्टर समीर पांडा जी, डॉक्टर कृष्णा एल्ला जी, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज का अवसर देश के लिए और हम सब के लिए बहुत खुशी का अवसर है और बहुत महत्वपूर्ण भी अवसर है, क्योंकि आज से बराबर 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान का प्रारंभ किया था और आज उसको 1 वर्ष हो रहा है। 1 वर्ष में हमने जो मंजिल कापी है, 1 वर्ष में हमने जो सिद्धि हासिल की है, उससे देश तो गौरवान्वित है ही, लेकिन दुनिया भी इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव से बहुत आश्चर्यचकित है। 1 वर्ष में 156 करोड़ से अधिक डोज देश में एडमिनिस्टर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 135 करोड़ की आबादी वाला देश, ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज डाइवर्सिटी, अनेक विविधता में भी हिंदुस्तान ने 18 एबव के 93% लोगों को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर कर दिया। 70% लोगों को फुल्ली वैक्सीनेटेड कर दिया। इतना ही नहीं, जब आवश्यकता खड़ी हुई तो 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया। 7.5 करोड़ हमारे यंग एडल्ट में से 3 करोड़ से अधिक युवाओं को आज फर्स्ट डोज लग चुकी है। देश के 60 एबव एज वाले हमारे बुजुर्ग लोग, और उसमें जिसको कोमोर्बिड है या तो कोई ना कोई बीमारी है, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन के प्रिकॉशनरी डोज लेने के लिए अनुमति दी गई। आज लगातार हमारे बुजुर्ग लोग भी प्रिकॉशनरी डोज ले रहे हैं और अपनी हेल्थ को सुनिश्चित कर रहे हैं। इतनी लंबी और इतनी सफल हमारी वैक्सीनेशन की गति के साथ हिंदुस्तान एक विशेष इतिहास भी अंकित किया है। जब देश में कोविड की फर्स्ट वेव आई थी
तब देश में अनिश्चितता का माहौल था, नहीं केवल देश में लेकिन सारी दुनिया में। कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे, कौन सी मेडिसिन उसके लिए उपयुक्त होगी, नंबर ऑफ टाइप के प्रोटोकॉल WHO से लेके दुनिया के सारे देश में कोविड मेडिसिन के लिए किया जा रहा था, कई प्रोटोकॉल में चेंजेस किया जा रहा था। अंततोगत्वा सारी दुनिया और सारी दुनिया के साइंटिस्ट इस बात पर निश्चित थे कि भविष्य में पेंडेमिक के सामने लड़ने के लिए हमें वेपन के रूप में वैक्सीन ही उपाय होगा। लेकिन इंडिया में वैक्सीन रिसर्च करना एक प्रकार था, वैक्सीन उपलब्ध कराना एक प्रकार था। हिंदुस्तान का इतिहास रहा था कि कोई दुनिया में पहले पेंडेमिक आए और उसके लिए दुनिया में वैक्सीन का रिसर्च हुआ, उसके बाद मिनिमम 10 साल से 15 साल के बीच में एक वैक्सीन इंडिया में आती थी। और जो ऐसी स्थिति रही तो देश को कैसे बचाएंगे, ये भी समस्या हमारे सामने थी। लेकिन एक समर्थ नेतृत्व के आधार पर यह निर्णय किया गया और हमारे साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करके कहा, हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ बातचीत करके कहा, क्या आपको मदद चाहिए, क्या हम देश में इंडिजिनियस रिसर्च कर सकते हैं, क्या देश में इंडिजिनियस प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या। जब प्रधानमंत्री जी ये सारी श्रेणी के क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे और उसका हौसला बढ़ा रहे थे, तब देश का सामर्थ्य का पता हमें लग रहा था। ये देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी, आवश्यकता थी उसको पहचान के उसको प्रोत्साहित करना, जो मोदी जी ने किया। यही हमारे साइंटिस्ट ने बीड़ा उठाया। हमारे ICMR जैसे इंस्टीट्यूट, हमारे भारत बायोटेक जैसे इंस्टीट्यूट, चाहे सर गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, एक दूसरे ने साथ में साथ मिलाया, कदम से कदम मिलाया। मोदी जी ने आर्थिक सहयोग किया, सभी रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट लोगों को प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, जहां रिसर्च चल रहा था इसी इंस्टीट्यूट में जाके प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दौरा किया। मैं भी सब रिसर्च करने वाली कंपनी के पास गया, विस्तार से कंपनियों के साथ रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट के साथ बातचीत हुई। जो जो देश में रिसर्च के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए प्रोटोकॉल में बदलाव करने की आवश्यकता थी, जो हमें सुझाव मिला, इस सुझाव के आधार पर हमने रिसर्च प्रोटोकॉल में बदलाव किया। हमने तुरंत ही या तो जल्द से जल्द ऑथराइजेशन मिले, उसमें जो भी पाबंदी थी, जो भी समस्याएं थी, जो भी कंफ्यूजन था, सबको दूर किया। और मुझे गौरव है कि दुनिया में कोविड वैक्सीन का रिसर्च हुआ, उसके साथ ही केवल 9 महीने में भारत में भी कोविड वैक्सीन का रिसर्च हो गया। रिसर्च होने के बाद देश में ही निर्मित, देश में ही संशोधित वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रारंभ करने के लिए मोदी जी ने 16 जनवरी यानी कि आज से 1 साल पूर्व जब वैक्सीनेशन अभियान का प्रारंभ किया, उस वक्त तरह तरह की बात की जाती थी। ये वैक्सीन कैसी वैक्सीन होगी, असरकारक होगी कि नहीं होगी, ये वैक्सीन लेने से ये हो जाएगा, ये वैक्सीन लेने से वो हो जाएगा। कई लोग पहले से ही इस काम में लग चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने ठान लिया था, विद्या हमारे साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करते रहे, कंपनी को प्रोत्साहित करते रहे, कंपनी हमारे साइंटिस्ट अपने काम करते रहे, वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग होता रहा, आगे बढ़ता चला, वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ता चला। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले लोग अपने काम करते रहे और देश अपना काम करता रहा। ये जब सारी ड्राइव चल रही थी, तब हमारे हेल्थ कर्मियों कदम से कदम मिला के वैक्सीनेशन अभियान में जुड़ गए थे। देश में 50,000, 60,000, 17,000, लाख, 1.25 लाख से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर ओपन होने लगे। एक के बाद एक नई सिद्धि हासिल होती गई। मुझे ये दिन याद है, 17 सितंबर
17 सितंबर, जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, मैंने केवल एक ट्वीट करके कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हम सेवा सप्ताह के रूप में उसको मना रहे हैं। क्या हम देश के नागरिक मोदी जी के जन्मदिन पर क्या उसको गिफ्ट दे सकते हैं? मैंने केवल क्वेश्चंस रखा था कि क्या हम वैक्सीनेशन ड्राइव में सहयोगी होके हमारे अड़ोस पड़ोस को वैक्सीनेट करके मोदी जी को जन्मदिन का तोहफा एक सेवा कार्य के माध्यम से नहीं दे सकते? केवल एक ट्वीट के आधार पर ये देश में जो लोक भागीदारी का भाव है वो जाग उठा। सरकार ने व्यवस्था की, कई एनजीओ काम में लगी, कई शैक्षिक संस्थाएं काम में लगी, कई नागरिक काम में लगे, कई पॉलिटिकल पार्टियां काम में लगी और 140 1,40,000 जितने वैक्सीनेशन सेंटर चालू हो गए। रात को 12:10 हुई, मुझे एक जगह से कॉल आया कि एक रेलवे स्टेशन पर हमने वैक्सीनेशन सेंटर चालू किया, एक स्वैच्छिक संस्था ने चालू किया था, सरकार की व्यवस्था ने उसको वैक्सीन उपलब्ध कराया। दोस्तों, सब लोग लगे, हमारे हेल्थ कर्मियों लगे, सब लोगों ने एक ऐसा इतिहास रचा। एक दिन में 24 घंटे में रात को 12 बजे से नेक्स्ट रात को नाइट 12 बजे तक 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ डोज एडमिनिस्टर कर दिया। ये छोटी बात नहीं थी, ये देश की जनशक्ति की ताकत थी, देश की सामर्थ्य की गाथा थी। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है 1,40,000 वैक्सीनेशन सेंटर चालू करना, सभी सेंटर पर 5-6 हेल्थ कर्मियों ने फुल टाइम काम करना 24 घंटे तक, और 2,40,000 वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर होना, मतलब 2,40,000 सीरिंज चाहिए वो उपलब्ध कराना, 2,40,000 निडल चाहिए उपलब्ध कराना। इतना ही नहीं, अगले दिन भी 90 लाख तो हुए थे और उसके बाद में नेक्स्ट डे भी 90 लाख डोज एडमिनिस्टर हुए ही थे। मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे, लेकिन विशेष तौर पर 2.5 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो जाना, ये हिंदुस्तान की जनशक्ति की बड़ी ताकत हमने देखी। और ये ताकत के आधार पर ये दिन आया 21 अक्टूबर, जिस दिन देश ने 100 करोड़ डोज को एडमिनिस्टर कर दिया, 100 करोड़ का डोज को एडमिनिस्टर करके विश्व में एक ऐतिहासिक घटना को स्थापित किया। ये छोटी बात नहीं थी। उसके बाद मैं G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए इटली रोम गया था। वहां डेवलप्ड कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर मेरे साथ थे। मुझे कल्पना नहीं थी कि लोगों ने इस तरह से उसको नोटिस किया होगा। जब मेरी बायलैटरल बात हो रही थी, 1-to-1 बात हो रही थी, मीटिंग में बात हो रही थी, सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान ने 100 करोड़ डोज एडमिनिस्टर कर दिया। कैसे किया, किस तरह से आप लोगों ने ड्राइव चलाई? आज भी आपने देखा होगा डेवलप्ड कंट्री में भी 93% से अबव फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हो गया हो, ऐसा नहीं है। जिस कंट्री यहां आए थे और अपना प्रेजेंटेशन में बोल रहे थे कि हमने 3 महीने में देश की 80% जनता को, 75% जनता को वैक्सीनेटेड किया है। लेकिन ये कंट्री का पॉपुलेशन कितना था? कई कंट्री का 1 करोड़, कई कंट्री का 2 करोड़। जब मेरी बारी आई तब मैंने विषय रखा कि जिस कंट्री ने, जो 3 कंट्री ने उल्लेख किया था, एक कंट्री का नाम मैंने नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा कि जिस कंट्री ने यहां अपनी स्वर्ण गाथा कही वैक्सीनेशन की, अच्छी है, मैं सराहना करता हूं, लेकिन आपकी कंट्री का पॉपुलेशन से अधिक हम वैक्सीनेशन सिंगल डे, एक डे में कर देते हैं।
ये हिंदुस्तान की एक ताकत है, हिंदुस्तान की एक शक्ति है। दोस्तों, मोदी जी ने हमारी इस शक्ति को उजागर किया। मोदी जी ने लोक भागीदारी सुनिश्चित की। सारी कोविड क्राइसिस में मोदी जी ने लोगों को एक क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए एक साथ जोड़ा, सभी का सहयोग किया, सभी को प्रोत्साहित किया, और ये प्रोत्साहन का नतीजा यह निकला। मैं लगातार पिछले 2 साल से दुनिया के साथ संपर्क में हूं। डेवलप्ड कंट्री जिसको हम कहते हैं, ऐसी कंट्री में भी हेल्थ कर्मियों जब कोविड क्राइसिस पीक पर होती है और अपने स्वयं को इफेक्टेड होने की संभावना लगती है तो छुट्टी ले लेते थे। लेकिन मोदी जी ने हमारे हेल्थ कर्मियों के लिए ताली बजाई, प्रोत्साहित किया, थाली बजाई, प्रोत्साहित किया, हमारे फ्रंट लाइनर लोगों को प्रोत्साहित किया, और उसका नतीजा ये निकला। कई हमारे डॉक्टर और हमारे पैरामेडिक स्टाफ ने अपने जान को गंवाया, लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। इस समर्थ नेतृत्व की निशानी है दोस्तों, और हिंदुस्तान की एक सफल गाथा है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, हमारे नर्सिस, हमारे लेबोरेटरी के वाले लोग, हमारे फ्रंट लाइनर लोग, वो डटे रहे। सेकंड वेव में डेल्टा वेरिएंट घातक था, लेकिन कोई मरीज को हमारे हेल्थ कर्मियों ने हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ऐसा नहीं कहा, और ड्यूटी छोड़ के स्ट्राइक नहीं किया, या तो नहीं घर पे चले गए। दोस्तों, आज जब वैक्सीनेशन अभियान का 1 वर्ष हो रहा है, उस अवसर पर जो हमने यहाँ 5 श्रेणी के लोगों को सम्मानित किया, हमारे डॉक्टर को सम्मानित किया, हमारे पैरामेडिक स्टाफ को सम्मानित किया, हमारे वैक्सीन ड्राइव में जुड़े हुए छोटे एक पार्ट, दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह तक वैक्सीन पहुंचाने वाले हमारे ड्राइवर को हमने सम्मानित किया, जन जागरण करने वाली हमारी आशा बहन को हमने सम्मानित किया, और फ्रंट लाइनर वर्कर्स को हमने सम्मानित किया। दोस्तों, ये सम्मानित जब हम कर रहे, तब मेरा दिल और मेरी छीनें गौरव से फूल रही है। यही हमारे एक ऐसी हेल्थ आर्मी है जिन्होंने लगातार 2 साल से इस लड़ाई में फ्रंट लाइन में लेके रह के ये लड़ाई लड़ी है। तब जाके आज देश थर्ड वेव का सामना भी हिम्मत के साथ कर रहा है, और आज देश 156 करोड़ से अधिक डोज एडमिनिस्टर करने में सफल रहे हैं। आज के अवसर पर मैं मेरे देश के सभी मेरी हेल्थ आर्मी को अभिनंदन करता हूं, हमारे वैज्ञानिकों को अभिनंदन करता हूं, हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अभिनंदन करता हूं, और इस सारे अभियान में साथी बने देश के नागरिकों को भी मैं आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से कोविड क्राइसिस के सामने लड़ाई लड़ी है, वैसे ही लड़ाई आने वाले दिनों में भी कोविड क्राइसिस के सामने जारी रहेगी। विजय भारत का ही होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज मैं आप सबको फिर से अनेकानेक शुभेच्छाओं देता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thing at some point in time has to come to a halt, and this is such a moment. And I really feel honored to propose this vote of thanks on behalf of THR, ICMR, and my own behalf.
what an outstanding moment it is indeed. This day, today, 16th of January 2022, it marks a long one-year journey with Covaxin. Its planning in relation to its administration, overcoming vaccine hesitancy, and many more baby steps, which have brought us today at this moment, which we are celebrating. I take the opportunity of standing here at this moment and would like to thank Dr. Mansukh Mandavia, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Dr. Bharti Praveen Power, Minister of State, the Minister of Health and Family Welfare, Government of India, and Sri Devonish Chauhanji, Minister of State, Ministry of Communications, for their valuable time and gracing this occasion. Your thoughts have motivated all of us. Further, I would like to express my deep sense of gratitude to Sri Vinit Pandey, Secretary, Department of Post, Sri Alok Sharmaji, Director General, Department of Post, Sri Ashok Kumar Podar, Additional Director General, Department of Post, and Sri Sunil Sharmaji, Director, Department of Post, to take great efforts and to make this function a success. We are all for your valuable presence and guidance at this place today where we are. Had it not been for your support, it would not have been possible, indeed. We are highly grateful to Professor Dr. Balram Bhargava, DG ICMR and Secretary DHR, for his leadership and support through all thick and thin. He was with us during all the ups and downs. That's what we expect from a great leader. And we are really thankful and grateful to you, sir. I'd be amiss, really, in my duty if I fail to express our gratefulness to Ms. Anu Nagar, Joint Secretary DHR, Ms. Geeta Narayan, Joint Secretary DHR, and Mr. Daulat Ram Meena, Deputy Secretary DHR, who have extended incredible support to enable us and reach this joyous moment as a team. An event of this nature and an achievement of this height can never be achieved with any one person's effort or initiative. It would not have been possible without the joining of hands of many. And it would be impossible to name each one of them. But just to name a few, Dr. Rajnikant of the Division of RMPPC ICMR, all the divisional heads of ICMR, directors of the ICMR institutes who are connected, most of them, I can see one of the directors, Dr. Rao of the National Institute of Medical Statistics here in this room, but most of the directors of the ICMR institutes are connected virtually. The scientists of ICMR institutes, Sri Rajiv Roy, Senior FA and Senior DDG, Dr. Lakshmi Narayan is here with us, ADG Administration, Mr. Jagdish Rajesh, and many administrative staff, because it is difficult to fathom how so many people, so many known and unknown hands are required for achieving what we have achieved today as a country and as a team. So it's not just the job of the scientist, as Dr. Rajnikant said, and Honorable Health Minister, Dr. Mansukh Mandavia ji, expressed through the gesture of felicitating just a few as representative of the whole country level workforce. I also would be amiss in my duties if I do not mention particularly the NIOH team, who has really made it possible by being there in Gujarat, with whose effort now the team from there is connected with us here virtually though, and many, many other individuals, which is impossible for us to name individually. Thanks one and all. And I would like to take the leave
with this feeling of happiness and gratitude, and with the announcement that those who are here, please join us for a little snacks and a tea or coffee. I'm sure it's there. But well, I cannot offer this to those who are connected virtually. Maybe in near future, we'll be able to have that opportune moment to join physically and to have a cup of tea together. Thank you. The COVID-19 pandemic has shown us what the virus can do, how it can weaken our lives and livelihoods and bring the entire world to a standstill. Across the scientists, health workers, governments, pharmaceutical companies, and industries have worked hand in hand to tackle this problem. In India, the apex biomedical research body, the Indian Council of Medical Research, or ICMR, has been at the helm of COVID-19 response. At the outset of the pandemic, ICMR facilitated testing in laboratories with a mission to ensure that tests are available and accessible to every person in the country. Today, testing has increased exponentially, with 3,000 labs providing COVID-19 diagnosis in even the remotest parts of the country. The Council has also provided evidence-based management and diagnosis guidelines and advisories to tackle the COVID-19 pandemic. Our scientists are researching to ensure that data is available to help tackle every problem that comes with the disease. We have built a simulator to ascertain what factors could be responsible for the third surge of SARS-CoV-2 infections at the district and state levels in the country, and how vaccination affects this surge. But the most incredible achievement in this pandemic is the development of a safe and effective vaccine in 10 months. ICMR, in partnership with an Indian manufacturer, Bharat Biotech, took on the strenuous task of developing an indigenous solution. In this partnership, both of us are working in public health, whether industry or ICMR or NIV, all of us are working only to help the community at large, our country at large, our society at large. ICMR has also worked with multiple partners to deliver these vaccines through innovative mechanisms, such as drones, increasing accessibility of the vaccine in the remotest country. Today, more than 110 million Covaxin doses have been administered to Indian people, which has helped the country cross over the milestone of providing 1 billion vaccination doses. We at ICMR are future ready, committed to drawing upon the country's brightest minds to provide cutting-edge solutions to health challenges, so that we can move forward for a safer and healthier world. The COVID-19 pandemic has shown up.